Hello and welcome everyone. Welcome to the second session of factors of production of the second factor of production. बच्चों हम लोग ने second factor production शुरू किया था if you remember, and the second factor of production was labor. और आज हम लोग लेबर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. लास्ट क्लास हमने आपको लेबर का मतलब बताया, व्हाट इज़ लेबर, वो हम लोग डिस्कस किए. वी डिस्कस्ड what is the meaning of labor as per economics. We discussed what is the causes of the low efficiency of labor. ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे. आज हम लोग लेबर के सेकंड टॉपिक में जा रहे हैं और वो जो हमारा सेकंड टॉपिक है बच्चों, वो सेकंड टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर. सो द सेकंड टॉपिक फॉर द डे इज for this session, for this topic is division of labor. So what do we mean exactly, what do we mean by the term division of labor? Let's first understand. देखिए बच्चों, division of labor, division of labor, division का मतलब क्या होता है? Divide करना, right? To divide, to divide. आप divide बोल सकते हो या आप टू डिस्ट्रीब्यूट बोल सकते हो, काम को बांटना या डिवाइड करना. सो डिवाइड व्हाट? डिवाइड द लेबर, डिवाइड द लेबर. लेबर का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लेबर का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा एफर्ट. सो एफर्ट को डिवाइड करने का बात हो रहा है यहाँ पे. सो किस तरह से हम लोग एफर्ट को डिवाइड करेंगे, अब बताइए हमको कि हाउ कैन यू डिवाइड द एफर्ट. क्या इज इट एन एप्पल और इज इट अ ऑरेंज, इज इट एनी फ्रूट दैट यू कैन डिवाइड इट? How can you divide the effort when you cannot see? It is not something tangible, right? It is not tangible, it is intangible in nature. We cannot see effort, right? So यहाँ पे फिर किस तरह से हम लोग डिवाइड करने की बात कर रहे हैं. सो देखिए बेसिकली जब हम when we talk about the division of labor, when we talk about dividing the effort, as I've said, actually इसका मतलब होता है कि एफर्ट का डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट, to channelize the effort in a particular direction. What I'm trying to tell you, understand, to channelize the effort in a particular direction. एक particular direction में effort को क्या करना बच्चों, effort को channelize करना. So let's understand with an example. We'll understand with this an example. Now suppose there is a concert in your school, right? So there is a concert in your school. आपके स्कूल में is an annual concert is being held, and now there are a lot of activities which will be performed in the annual concert. So there will be dance, right? There will be choir. You will have your school choir. That singing part will be there. Then you will there is music. Then play, drama, right? Then also you will have some decorations which will be needed to be done during the for the concert. So a lot of works has to be done. So now what does the school do? स्कूल क्या करता है, द मैनेजमेंट क्या करता है, आपको याद होगा कि आप देखो, so there are a lot of students. Now as per the skill and the talent, as per the skill and the talent of this student, what, right? Try to understand. As per the skill and the talent of the student, the work is given to them. इन बच्चों का जो टैलेंट है, इन बच्चों के पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसके अनुसार the work is given to them. So say suppose this person is he is good in singing, so therefore he is sent to choir. इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है कि अच्छा तुम choir देखो. This person is good in music, तो इसको बोल दिया कि ओके ठीक है चलो तुम म्यूजिक का काम देखो. This person is good in drama, in acting, so इसको प्ले का जिम्मेदारी दे दिया गया. So this person is good in dancing, so he has been given the responsibility of to choreograph the dance. So what is happening, यहाँ पे the efforts of the students, each student's effort is being channelized, is being directed towards a specialized task. So the word is here specialize, एक specialized टास्क के प्रति. सो विथ फॉर अ स्पेशलाइज्ड टास्क, एक स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए ये उनको उनका एफर्ट को चैनलाइज किया जा रहा है. सो देखिए बच्चों, इसलिए आप हमारा
मीनिंग में देखोगे डिवीजन ऑफ लेबर का, दैट डिवीजन ऑफ लेबर बाय डिवीजन लेबर ऑफ मीन स्पेशलाइजेशन इन वर्क और ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन इन वर्क. सो व्हाट डू वी डू, यहाँ पे द ह्यूमन बीइंग्स आर गिवन द जॉब और द task as per their knowledge, as per their talent, as per their skill, so that they can specialize their efforts, so that specifically they put their effort into that particular job task only. सो सिमिलरली अगर इस बच्चे को म्यूजिक संभालने दिया गया है, सो दैट पर्सन स्टूडेंट्स रोल विल बी to take care of the music department of the annual concert. If a student has been asked to choreograph the dance, so all his effort will go in choreographing the dance and taking care of the dance part of the concert. If a student has been given a role of decoration, so therefore his entire effort will be channelized, his entire effort will be directed or put for decoration only. Got it? So this is what we mean by division of labor. इसका मतलब होता है स्पेशलाइजेशन. लोगों को स्पेशलाइज टास्क दिया जा रहा है, तो सबके एफर्ट, सब कोई सब काम नहीं कर रहा है, राइट? एवरीबडी इज नॉट डूइंग एवरीथिंग. सो हियर each student has been given a special task. Similarly, in an organization also, similarly in our day-to-day life also, human beings, they put their efforts in a particular task, in a particular area or a job. So when this happens, we say that there is a division of labor. So याद करिए, division of labor का मतलब ये नहीं कि आप इंसान को डिवाइड कर रहे हैं. एक्चुअली आप उस इंसान के अंदर में जो एफर्ट्स है, द ह्यूमन एफर्ट्स, आप एफर्ट्स को क्या कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं. आप सबको सब जगह एफर्ट, एक ही जगह एफर्ट डालने नहीं बोल रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं कि लोग अपने टैलेंट और अपने स्किल के हिसाब से उनको उसका रोल दे दिया गया, अब तू अपना सारा मेहनत, सारी एफर्ट इसी में डाल. So that is what we mean by division of labor, right? So by division of labor we mean specialization in work. Types of division of labor, कितने तरह के division of labor होते हैं? So सबसे पहले होता है product based division of labor. जब एक इंसान एक particular, किसी particular product बनाने में माहिर है, या वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में अपना सारा एफर्ट डाल देता है, तो उसे हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं. यहाँ एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कारपेंटर है, राइट? सो कारपेंटर एक ही तरह के प्रोडक्ट, वुडन प्रोडक्ट बनाता है, राइट? द पॉटर, जो मिट्टी के जो कुल्हाड़ जो होते हैं, जो मिट्टी के टॉयज़ या मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के चीज़ बनाते हैं, सो वो स्पेशली उसका सारा एफर्ट, उसका ज्ञान उसी चीज़ को बनाने में है, तो वो अपने सारे एफर्ट उसमें डालता है. उसी तरह ये दिस पर्सन ये एग्रीकल्चर कर रहा है, तो इसका पूरा का पूरा एफर्ट खेती में जा रहा है. so, इसका जो क्रॉप्स, इसका जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? क्रॉप्स वो उगा रहा है. सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर. आपको समझ में आया बच्चों? से फॉर एग्जांपल मैं, सो आई एम अ टीचर हियर, सो if I am a teacher, my job is to teach. So what is my product? My product is the teachings that I am giving to you. That is my product, right? That is my product. A doctor gives the medical consultancies, right? वो लोगों को दवाइयाँ prescribe, उनको इलाज करता है. So I cannot do the role of a doctor because my knowledge, my training, my education has been given to me to become a teacher, and that's why my full effort I put into education business. My full effort, all the products which I make is related to education, right? Lawyer, so lawyer ka knowledge, lawyer ka he is well acquainted with the law of the land, he is well acquainted with the law of the country. So therefore any kind of legal advices we go to, right, we go to lawyer for any kind of legal advices. Why? Because he specializes in that. Why? If somebody wants to learn economics, he will come to me because I am specialized in that. If somebody wants to seek any medical help, any medical kind of consultation, he or she will go to a doctor because a doctor is specialized in that,
राइट। सो ये देखिए सबका अपना अपना एक प्रोडक्ट हो गया। उसी तरह अगर आपको एक टेबल चेयर बनाना है तो यू विल गो टू अ कारपेंटर बिकॉज ही इज स्पेशलाइज इन दैट। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। सबके अपने अपने प्रोडक्ट है और हर कोई एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि वो सारे एफर्ट, वो ह्यूमन बीइंग अपना सारा एफर्ट उसी प्रोडक्ट में डाल रहा है। मैं अपने सारे एफर्ट टीचिंग में डालता हूं और कहीं नहीं डालता हूं। सो देयरफॉर ये हो गया मेरे लिए प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। उसी तरह होता है बच्चों प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अब क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट होता है जो बनने के लिए एक बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा उसे पास करना पड़ता है, राइट। सो प्रोडक्ट हैज टू गो थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। जैसे ये जो मैं शर्ट पहना हूं, ये शर्ट मैं ये जो अवतार में आप जो ये शर्ट देख रहे हैं, जिस फॉर्म में ये शर्ट आप देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं आया, इसका एक प्रोसेस था, राइट। उस टेक्स्ट धागा से ये कपड़ा बना, ब्लीचिंग हुआ है, पहले रेशम जो सिल्क होता है उससे वो स्पिनिंग हुआ, थ्रेड हुआ, ब्लीचिंग हुआ, कलरिंग हुआ, और ये फिर प्रोसेस के बाद फिर इसका कटिंग हुआ, स्टिचिंग हुआ, और तब जा करके ये शर्ट ऐसा बना। और अब ये आप समझ में आ रहा होगा आपको कि ये एक ही व्यक्ति ये सारा काम नहीं किया है। एक व्यक्ति जो स्पेशलाइज है इसको स्टिच करने में, टेलरिंग करने का व्यक्ति अलग था, राइट, जिसका काम था स्टिच करना। स्पिनिंग करने का व्यक्ति अलग था, ब्लीचिंग करने का, कलरिंग करना, जो इसको कलरिंग किया है, डाइंग किया, उसके लिए जो लोग होंगे वो अलग होंगे, बिकॉज एवरीबडी इज स्पेशलाइज इन समथिंग। सो someone is specialized in stitching, someone is specialized in coloring, someone is specialized in dyeing or bleaching. So एक कपड़ा जिससे प्रोसेस से, जितने सारे प्रोसेस से गुजर रहा है, हर प्रोसेस में you have got specialized people working in that process, राइट। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कार इंडस्ट्री में, एक कार जो बनता है बच्चों, सो दैट कार हैज टू गो टू अ डिफरेंट प्रोसेस। अब एक ही व्यक्ति सारा प्रोसेस में काम नहीं करता, हर प्रोसेस में ये गॉट स्पेशलाइज। सो कार का डिजाइनिंग, कार का जो टेक्निकल पार्ट है उसकी इंजीनियरिंग, उसके इंजन का काम, उसका कलरिंग, उसका डिजाइनिंग, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं, और इसके लिए अलग अलग लोग हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। हर प्रोसेस में एक व्यक्ति खड़ा है, हर प्रोसेस में अलग व्यक्ति है जिसे ज्ञान उसी पर्टिकुलर प्रोसेस का है। सो जो टेलरिंग, जो इस शर्ट को जिसने स्टिच किया है, उसका ध्यान, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज कपड़ों को स्टिच करने का है। अगर आप उससे बोलोगे कि आप कपड़ों को डाई कर दो, या आप उसको कपड़ों को आप ब्लीचिंग कर दो या कलरिंग कर दो, वो नहीं कर पाएगा, because he is not specialized in that, he is specialized in stitching, right? So therefore अब जो बंदा कलरिंग पे फोकस कर रहा है, जो ये कलरिंग आप देख रहे हो, ये जो हमारे क्लॉथ में, शर्ट में जो कलर है, इस कलरिंग के लिए अलग व्यक्ति है जिसका काम कलरिंग करना है, तो वो उसमें वो माहिर है, वो उसमें उसका स्पेशलाइजेशन है। उसे आप कहोगे स्टिचिंग करना, तो स्टिचिंग नहीं कर पाएगा। सो उसी जिस तरह से ये आप ये एक शर्ट देख रहे हो, एक डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए इस रूप में आया, उसी तरह एक कार डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए आप उस कार को एक फाइनल रूप देखते हो। सो इट हैज गॉन टू अ डिफरेंट प्रोसेस, एंड इन एट एवरी प्रोसेस देयर इज अ पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग, and that is what we call a process based division of, this is what we call process based division of labor. Then we have a geographical division of labor. What is geographical या territorial division of labor भी बोलते हैं हम लोग इसको, territorial division of labor, territorial division, right? So what is territorial? See देखिए यहाँ से नाम से पता चल रहा है बच्चों, territorial comes from the word territory. तो टेरिटरी का मतलब होता है स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक एरिया, एंड दैट इज व्हाट हियर आल्सो मीन जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल मतलब एक फिजिकल अलग से एक प्लेस, एक फिजिकल प्लेस, राइट। सो टेरिटरी बोल लो, जियोग्राफिकली बोल लो, इसका मतलब क्या होता है, टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर और जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर। कभी कभी आप देखोगे बच्चों, कुछ एरिया, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया, उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से, उसके और भी फैक्टर्स के वजह से वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट में या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में, कमोडिटी का प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है।
क्या कहना चाह रहे हैं हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपको ब्लैक सॉइल मिलता है, राइट, एंड देयरफॉर महाराष्ट्र में यू विल फाइंड कॉटन कल्टीवेशन कई मैंने आपको मिलेगा. So since the climatic condition or the geographical condition of Maharashtra, right, that provides black soil and it facilitates cotton, so therefore facilitates the production of crops, production of cotton, and that is why you will find there is a textile industry. The Maharashtra में textile industry का बहुत क्या बोलते हैं उसको फैसिलिटेट करता है. कई सारे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेंगे एंड देयरफॉर यू विल सी पीपल वर्किंग देयर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. क्लियर. सो वहां पे ये हो गया क्या, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर. सो यहाँ के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, इनका ज़्यादातर एफर्ट्स कहाँ जा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहा है, कपड़ा बनाने में जा रहा है. वाई? क्योंकि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाया जाता है और ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर कॉटन, राइट. कॉटन का कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड एंड देयरफॉर सिंस ब्लैक सॉइल इज़ देयर इट प्रमोट्स कॉटन कल्टीवेशन एंड देयरफॉर इन रिटर्न अगर कॉटन सही हो रहे हैं सो देयरफॉर उसी कॉटन से दैट विल हेल्प द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम करेगा. समझ में आ रहा है. सो यहाँ के लोग उसी तरह यहाँ महाराष्ट्र के लोग यू विल फाइंड वर्किंग इन स्पेशली इन द रूरल, सब रूरल एरियाज, सबर्बन एरियाज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हुए लोग आपको मिलेंगे. उसी तरह वेस्ट बंगाल का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है दैट हेल्प्स in the cultivation of jute and therefore jute related products जो होते हैं, रोप्स हुए हैं, सैक्स हुए हैं, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, कपड़ा भी हो सकता है उससे, और भी जूट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. सो जूट रिलेटेड इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री फ्लरिशेस इन बंगाल एंड देयरफॉर यू विल फाइंड द पीपल वर्किंग इन द जूट इंडस्ट्रीज. सो देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग, द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द अदर ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ वेस्ट बंगाल facilitates jute production, facilitate jutes का cultivation, and that in return helps in promoting the jute industry. And again, then you find the people being specialized in working in the jute industry. So therefore ये जो हो रहा है, ये उस शहर का, उस जगह का, उस स्टेट का ज्योग्राफिकल कंडीशन के चलते वहाँ के लोग स्पेशलाइज हो जा रहे हैं, वहाँ के लेबर स्पेशलाइज हो जा रहे हैं इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन, पर्टिकुलर गुड्स का प्रोडक्शन में. So this is what we call, my dear student, geographical division of labor. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं advantage of division labor. So जब division of labor होता है तो इसका advantage क्या है? नंबर 1, right man at the right job. सबसे बढ़िया बात देखिए, आज आप छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. आज आपके स्कूल में आप देखोगे कि आपका बायोलॉजी टीचर है, राइट, एक आपके मैथ्स टीचर है, एक आपका इंग्लिश टीचर है, राइट, हिस्ट्री टीचर है, राइट, सो मेनी सब्जेक्ट्स है. आप देखोगे बच्चों कि आपके जो साइंस टीचर है वो अलग होंगे, जो आपके इंग्लिश के टीचर है वो अलग होंगे. 99% केसेस में ऐसा होगा. वाई? बिकॉज दैट पर्सन हु इज टीचिंग यू साइंस, ही हैज़ गेन्ड हिज नॉलेज इन साइंस, he has undergone training to teach science. The person who is teaching you English, the teacher who is teaching you English, he has acquired, he has his education qualification या उसका educational जो background है, that suggests that he should teach English because उसने इंग्लिश में उसका वो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को लेकर के ज़्यादा पढ़े होंगे, इसलिए उसे इंग्लिश पढ़ाने भी मिला है स्कूल में. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो आर्ट्स में ग्रेजुएट किया है, एक टीचर जिन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएट किया है, और उसे बोल दिया जाए कि क्लास 11-12 का बायोलॉजी पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ाएगा? वाई? बिकॉज उसका जो एडुकेशन है, उसका जो नॉलेज है, वो बायोलॉजी पढ़ाने के लिए नहीं, वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए सुटेबल है, बट उसको इंग्लिश पढ़ाने दे दिया गया, उसको बायोलॉजी पढ़ाने दे दिया गया. सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे गलत आदमी को गलत काम दे दिया जा रहा है. सो डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि जब हम लोग लोगों को काम देते हैं, लोगों को स्पेशलाइज जॉब दिया जाता है, रोल दिया जाता है, तो उनको उनके टैलेंट, उनके ज्ञान, उनके एजुकेशन, उनके ट्रेनिंग के आधार पे, उनका जो नॉलेज है उसके आधार पे उसे वो काम दिया जाता है. सो देयरफॉर क्या होता है कि सही व्यक्ति को सही काम, राइट मैन एट द जॉब. सो जो वो काम को जो व्यक्ति कर सकता है उसी को मिलता है वो करने के लिए. So that is the biggest advantage, one of the biggest advantage of division of labor, because then you are
putting your right man at the right job, right? So you cannot ask Jasprit Bumrah to come and open the batting for India, because he is specialized in bowling. So therefore he will be opening the bowling. You cannot ask Virat Kohli to open the bowling for India, right? So Virat Kohli is not going to open in the bowling. He's not in the bowling department. He may come in the middle of the over just to chip in. He can do 1 or 2 over, but he's not specialized in bowling. He's specialized in batting. You cannot ask Virat Kohli to अब इंडिया के लिए ओपन बॉलिंग करो. उसी तरह जसप्रीत बुमराह को नहीं बोला सकता कि ओपनिंग बैटिंग करो. सो राइट मैन एट राइट जॉब. एवरीबडी स्पेशलाइज इन रोड डिपार्टमेंट एंड दे परफॉर्म देयर ओन रोल. नेक्स्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर. सी देखिए कितना कॉमन बात है बच्चों. जब इंसान को उसके नॉलेज के हिसाब से उसे काम दिया जाता है, उसके टैलेंट, उसके ज्ञान के हिसाब से उसे काम दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वो काम अच्छा करेगा. आज मेरा जो लाइकिंग है वो है इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स पढ़ाना. मेरा जो नॉलेज है वो अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स में है. मेरा जो पढ़ाने का जो कंफर्टेबिलिटी है, आई एम मोर कंफर्टेबल इन टीचिंग इको, कॉमर्स एंड अकाउंट्स. इफ आई एम आस्क्ड टू टीच बायोलॉजी, इफ आई एम आस्क्ड टू टीच इंग्लिश, देन आई विल नॉट बी एबल टू. हाँ, थोड़ा सा चलो जितना मेरा ज्ञान है इंग्लिश का हम पढ़ के पढ़ा सकते हैं, बट आई कैन नॉट बी एन एफिशिएंट टीचर as I am today, or as I am efficient in teaching accounts, I may not be equally efficient in teaching English language or any other subject. Why? Because English is not my subject. I know English, but in order to teach English, the knowledge which I should have, वो ज्ञान नहीं है मेरे पास. But accounts, yes, I've got the command of my subject. I like that subject. I love this subject, and I want to teach. I love teaching it. So you need to understand, जब इंसान को उसके रोल, उसका एडुकेशन के हिसाब से उसको रोल दिया जाएगा, उसके नॉलेज के हिसाब से उसको रोल दिया जाएगा, उसके ट्रेनिंग जिसमें मिला उसको उस हिसाब से रोल दिया जाएगा, तो वो उस काम को अच्छा करेगा. Obviously उस काम में उसकी एफिशिएंसी अच्छा रहेगी. So I can teach more efficiently accounts as compared to other subjects. तो इसी तरह बायोलॉजी टीचर को बोलिए कि जाओ बेटा तू हिस्ट्री पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ाएगा. वो पढ़ा तो लेगा, लेकिन वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा. इसीलिए एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में आता है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ लेबर. सेकेंड है सेविंग ऑफ टाइम्स एंड टूल्स. ऑब्वियसली देखिए बच्चों, जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी. आपको याद होगा कि एफिशिएंसी में हमने आपको क्या कहा था बच्चों. एफिशिएंसी में जब किसी लेबर का एफिशिएंसी को मेजर करना है तो उसके एफिशिएंसी को मेजर कैसे किया जाता है बच्चों. आपको याद होगा 3 चीज देखते थे हम लोग. एक क्वांटिटी देखते थे, क्वालिटी देखते थे, और दूसरा देखते थे, तीसरा देखते थे टाइम, कि कितने टाइम के अंदर में वो कितना प्रोडक्ट बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, और कैसा प्रोडक्ट बना सकता है. क्वालिटी देखते थे हम लोग, राइट. सो उसी तरह जब एक लेबर का एफिशिएंसी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो कम समय लेगा उस काम को करने के लिए. जब उसे पता है, जब उसे ज्ञान है, राइट, करने की. जब एक स्टूडेंट जो एक मैथ्स टीचर को आप एक मैथ्स का सम दो सॉल्व करने के लिए, और एक हिस्ट्री टीचर को दो मैथ्स का सम सॉल्व करने के लिए, हिस्ट्री टीचर भी शायद सॉल्व कर दे, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले सकते हैं एज कंपेयर टू द मैथ्स टीचर, बिकॉज मैथ्स टीचर इज इक्विप्ड विद द नॉलेज टू सॉल्व दैट सम, बिकॉज ही इज डूइंग दैट, right. Uska knowledge, he is specialized in maths, so therefore he will take lesser time to solve a maths problem as compared to a teacher who is teaching history in the school. So therefore अगर सही आदमी को सही जगह में काम दिया जाए, सही आदमी को सही जगह में रोल दिया जाए, so therefore वो उस काम को करने के लिए समय भी कम लेता है, और टूल्स मतलब वेस्टेज भी कम होगी. चीजों का वेस्टेज भी क्या होगा बच्चों, कम होगा. और उसी से रिलेटेड है नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स. ऑब्वियसली जब एफिशिएंसी बढ़ेगा तो देयरफॉर क्वालिटी भी तो इंक्रीज होगा माय डियर स्टूडेंट्स. जब एफिशिएंसी बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगा. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मेरे को आप हिस्ट्री बोलो पढ़ाने या साइंस बोलो पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ा तो लूं, लेकिन मैं उस क्वालिटी का नहीं पढ़ा पाऊं, उस एफिशिएंटली मैं नहीं पढ़ा पाऊं जैसे मैं अकाउंट्स, इको, कॉमर्स पढ़ा लेता हूं. व्हाई? बिकॉज मेरे को वो काम दे दिया गया है जिसमें मेरे पास पर्याप्त नॉलेज, ज्ञान नहीं है. Right. So therefore it does, when you give the right man at the right job, you do not need to worry about the quality of goods, because he will produce a superior quality of goods. His product will be a better quality, will be of a better quality, will be of a good quality,
right? So production of a superior goods, and also इससे एक चीज होता है less supervision, तब आपको लोगों को देखने की जरूरत, सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है उसका क्या काम है, क्या करना है, और सबको उसके ज्ञान, उसके टैलेंट के हिसाब से उसे काम दिया गया है। सो देयरफॉर सबको ही अपना अपना काम ध्यान कर रहे हैं और सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? इन्वेंशंस क्या होता है बच्चों, जब एक चीज आप बार बार करते हो ना, एक चीज जब आप बार बार करते हो तो देयर इज अ वेरी पॉसिबिलिटी एक्सक्यूज मी दैट यू मे इन्वेंट समथिंग ऑफ योर ओन। सो एक मैथ्स टीचर अगर एवरी डे वही सम, एवरी डे वही टॉपिक, एवरी ईयर वही सब्जेक्ट, वही क्लास पढ़ा रहा है, तो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं एक नया ट्रिक निकाल लेगा, नया टेक्निक निकाल लेगा एक सम को सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज बेसिकली एन इन्वेंशन, वो भी एक इन्वेंशन है। सो जब आप एक व्यक्ति को उसके नॉलेज के हिसाब से काम दे दिए, उसके ज्ञान के हिसाब से काम दे दिए, वो काम करे जा रहा है, सो देयरफॉर पॉसिबिलिटी होता है कि वो उसी काम को करने का एक अलग तरीका निकाल ले, बिकॉज वो एक काम को करते करते इतना मोनोटोनस हो जाएगा कि वो खुद क्या करेगा, वो एक अलग तरीका निकालेगा कि कैसे इस काम को अलग तरीका से, शॉर्टकट तरीके से, मोर एफिशिएंटली किया जा सके, एंड दिस विल लीड टू इन्वेंशंस। कोऑपरेशन अमंग वर्कर्स, ऑब्वियसली व्हेन सम, जब क्या होता है बच्चों, देखो डिवीजन, जब हम लोगों का स्पेशलाइजेशन होता है ना, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो सबको अलग अलग काम कर दे दिया गया, ठीक है, लेकिन बच्चों सबको इंटरलिंक्ड है आपस में। जसप्रीत बुमराह में बी स्पेशलाइज इन बॉलिंग, विराट कोहली में बी स्पेशलाइज इन बैटिंग, बट व्हेन बुमराह बॉल्स, Virat Kohli has to field nicely, because if the bowler does not get the cooperation from his fielder, then bowler will be demotivated, right? So therefore the bowler's effort, bowler's performance also depends upon the fielder जो fielding कर रहा है। So Virat Kohli may be a good batsman, but उसकी जो opposite end में जो उसके साथ बैटिंग कर रहा है, उसे उसके साथ cooperation करना पड़ेगा, right? So process based division of labor, आपको याद होगा मैंने कहा कि एक ये जो शर्ट आप जो देख रहे हैं, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, जिसने रेशम से जो धागा बनाया है, धागा से जिसने इसका कलरिंग की है, जिसने इसका डिजाइनिंग की है, जिसने इसका स्टिचिंग की है, सबका काम है, सबका कॉपरेशन है। अगर जब तक डाइंग नहीं होगा, ब्लीचिंग नहीं होगा, कलरिंग नहीं होगा, इसका स्टिचिंग, कटिंग नहीं होगा, इसका स्टिचिंग नहीं होगा, जो स्टिच किया है वो उसके उस मेजरमेंट के हिसाब से स्टिच किया है, जो डिजाइनर ने जो डिजाइन किया इस शर्ट को उसके हिसाब से स्टिच किया। सो एवरीबॉडी इज इंटरलिंक्ड, everybody is interlinked, so they have to cooperate among each other, otherwise if they are not cooperating तो काम नहीं हो पाएगा, right? So cooperation होगा among workers. Next, less cost of production, as I said, time बचेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी तो क्वालिटी अच्छा होगा। सो एवरेज कॉस्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहां एक घंटा में 10 यूनिट बनने को, वहां एक घंटा में 15 यूनिट बनेगा, राइट? सो एवरेज कॉस्ट, मोर प्रोडक्शन, उसी रिसोर्सेज के साथ, जो रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध है उसी रिसोर्सेज के साथ आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, मतलब आपका एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर। जब आप स्पेशलाइज हो जाते हो ना किसी का ज्ञान किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या होता है ना कि आपका पास एक स्पेशलाइज नॉलेज है, सो देयरफॉर आप इजीली ट्रांसफर हो सकते हो, आप इजीली एक जगह से दूसरा जगह आप जा सकते हो इन द सर्च ऑफ द न्यू जॉब, because now you have a specialized knowledge, right? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रिशियन है, जो प्लम्बर है, उनके पास अपने फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और वो इतने माहिर हो जाते हैं एक ही काम करते करते कि वो किसी भी शहर में जाए प्लम्बर की ज़रूरत है, किसी में शहर में जाए इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, किसी में शहर में जाए लॉयर की ज़रूरत है, किसी भी शहर में जाए डॉक्टर की ज़रूरत है। So therefore what happens, it increases the mobility of the labor. So since the labor, what happens, the labor gets specialized in one particular area, right? एक ही पर्टिकुलर एरिया में वो हो जाता है और वो इतना प्रोफेशनल हो जाता है अपने काम में, क्योंकि एक ही काम को बार बार करते वो इतना प्रोफेशनल हो जाता है कि उसके अंदर में इतनी कॉन्फिडेंट आ जाती है, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज उस पर्टिकुलर एरिया में इतना बढ़ जाता है
कि वो इजीली दूसरे जगहों में भी जा करके उस काम का तलाश कर सकता है, उस काम को ढूंढ सकता है और वो काम उसे मिल सकता है। राइट समझ में आ रहा है? इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ लेबर समझ में आ रहा है? कैसे फिर से समझाते हैं। देखिए, जब आपको एक काम बार बार करना पड़ रहा है, सो जब आप एक काम बार बार कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस एरिया में आप प्रोफेशनल हो जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल हो जा रहे हैं, आप उस काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं ना। आपके पास एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर टास्क का एक स्पेशलाइज ज्ञान, आपको हम लोग फिर स्पेशलाइज कहना शुरू कर देते हैं। आप मैथ्स के स्पेशलाइज टीचर है, आप बायोलॉजी के स्पेशलाइज टीचर है, आप दांत के डॉक्टर है, आप हड्डियों के डॉक्टर, जो यू बिकम स्पेशलाइज, यू आर अ लॉयर, आप स्पेशलाइज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, स्पेशलाइज, आप प्रोफेशनल हो जाते हैं। सो व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू लुक फॉर अ न्यू जॉब। राइट तो जहां जहां आपके जैसे काम की जरूरत है, आप वहां आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, उस इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। ठीक है, सो ये था कुछ एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, एंड दिस इज हियर वी कम टू द एंड। आई होप कि आपको लेबर जो टॉपिक वो समझ में आया। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड फैक्टर प्रोडक्शन शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, इन सेशन 3। Right, so I hope that you have understood the chapter, this topic. If you have any problem, any doubt, feel free to get in touch with me. See you all in the next session. Till then, take care and bye bye.